السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح میڈم لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم الہمنی رشدی واعصمنی من شر نفسی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم فقہنا فی الدین وبک نستعین، اللہم انفعنا بالقرآن العظیم، اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنت بالقرآن، آمین یا رب العالمین۔ رب زدنی علما اجمعین۔ آج ہم ایٹ دی آؤٹ سیٹ ابتدا میں ہی ہم ایک دعائیں مغفرت کر لیتے ہیں۔ ہماری جو رکن ہیں سراج النساء، جو ہمیشہ رہتی ہیں کلاس میں، آج تو نہیں ہوں گی، ضرور نہیں ہوں گی، ان کے بہن بھی کا انتقال ہو گیا کل رات میں اچانک۔ اسے پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا، انہیں سب کچھ اچھا تھا، ہیلدی، کوئی گھر میں نہیں تھا، اس وقت انتقال ہوا ہے۔ کیا ہوا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی نہیں تھا گھر میں، پلنگ سے گر گئے، پلنگ پر ٹانگے ہیں اور زمین پر الٹے منہ گرے ہیں، تو ناک کی ہڈی سے بھی خون جاری ہو گیا تھا۔ یہ آ کر دیکھ لیے، کہیں باہر گئے ہوئے تھے کسی کو سی آف کرنے کے لیے، 11 ساڑھے 11 بجے ہوا ہوگا، وہ بھی ٹائم کا بھی متعین نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ لیٹ آئے، سی آف کرنے کے بعد لیٹ آئے۔ ایسا ہی بس زندگی یہی ہے، زندگی کا اتنا ہی یقین رکھ سکتے ہیں، غیر یقینی زندگی، یقینی طور پر جو ہے وہ موت ہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ نحمدہ ونصلی نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ یا اللہ، سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے، زندگی، موت، حیات، سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تو ہی ہے مالک ہمارا، جب چاہے تو دے دے، یہ امانت ہے تیری زندگی، جب چاہے لے لے۔ یا اللہ، ہماری زندگی میں خیر و برکت عطا فرما، اور ہماری زندگی تیرے احکامات کے تحت گزرے، تیرے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والی زندگی عطا فرما، ہدایت عطا فرما، ہمارے دلوں میں نور عطا فرما، قرآن کے احکامات پر عمل پیرا ہونا، قرآن کے احکامات کو ہماری زندگی میں تنفیذ کرنا ہمارا مقدر فرما دے۔ یا اللہ، جب تجھ سے ہم ملیں تو تو بھی خوش ہونا اور ہم بھی شوقین ہونا تجھ سے ملنے کا، ایسی فرما، کلمہ طیبہ پر، کلمہ شہادہ پر، کامل ایمان پر اٹھانا۔ اللہ، اللہ حقوق اللہ بات کی کوتاہیوں سے بچانا، غفلت سے بچانا، یا اللہ غفلت کی زندگی سے بچانا، بے برکتی والی زندگی سے بچانا۔ یا اللہ، اب جو ہمارے رکن کے نسبتی برادر بہن بھی، ارشاد احمد، جو اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں کل رات، آج تجہیز و تکفین بھی ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ یا اللہ، ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، انہیں جنت الفردوس کا اعلیٰ سے اعلیٰ ترین مقام عطا فرما۔ اللہ انہیں اپنے جوار رحمت کی جگہ نصیب فرما، اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرما، اعلیٰ علین میں جگہ نصیب فرما۔ یا اللہ، ان کے جو گناہیں معاف فرما دے، ان کے اچھے اعمال کو تو قبول فرما، بے حد و حساب و اجر و ثواب عطا فرما۔ جو بھی سیئات ہیں یا اللہ، ان سے درگزر فرما، عفو و کرم سے درگزر کام لینا۔ اللہ، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمانا۔ اللہ ان کی خبر کو کشادہ، نورانی، روشن، منور، معطر کر دے۔ اللہ ان کے لیے کے سوالات آسان فرما دے۔ اللہ ان کی خبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ یا اللہ، ان کے جو بھی لواحقین ہیں، ان کے بیوی ہیں، بچے ہیں، جو بھی ہیں، یا اللہ انہیں صبر عطا فرما۔ یا اللہ، اس کا اجر عظیم بھی عطا فرما۔ یا اللہ، ساری دنیا کے مسلمانوں کو غفلت سے بچا لے، اللہ شرک سے بچا لے، بدعت سے بچا لے، کفر سے بچا۔ اللہ، یہ ساری چیزیں ہیں جو تیری طیش، تیرے غضب کو بھڑکانے والی ہیں۔ یا اللہ، یا اللہ، تیرے ہاتھ میں ہے، تیرے دو انگلیوں کے درمیان ہی سب کے خلق، تو جیسا چاہے، جس طرح چاہے، کھینچ کر لا لے راہ راست پر۔ اللہ، کھینچ کر لا لے میرے بالک صراط مستقیم پر چلا دے۔ یا اللہ، ساری دنیا کے مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلا دے، کلمہ طیبہ والی زندگی، کلمہ طیبہ والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ، یا اللہ، یہ جو تیرے حرام کامہ ہیں، سودی معاملات، رشوت، یہ سارے بے ایمانی کے تیرے حرام کیے ہوئے جو بھی کام ہیں، اس سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ، تیری رضامندی، تیری خوشنودی والے کام کرنے والے بنا دے، جنت میں لے جانے والے عمل ہمیں عطا فرما دے۔ اللہ، جھوٹ سے بچانا، سود سے بچانا، رشوت سے بچانا، تیرے سارے حرام
वाले हराम कामों से बचाना या अल्लाह। या अल्लाह सारी दुनिया के मुसलमानों को या अल्लाह हमारे दिलों को तेरी तरफ फेर दे। या मुखल्लिबुल कुलूब सब्बित कुलूबना, या मुखल्लिबुल कुलूब सब्बित कुलूबना अला दीनिक। या अल्लाह सारी दुनिया के मुसलमानों को सिराते मुस्तकीम पर चला दे। आजकल जो भी हालात हैं या अल्लाह, उसमें मुसलमानों को बाहर निकाल दे या अल्लाह। मुलव्विस हैं सूद में, ला मोहल्ला मुलव्विस हैं या अल्लाह, इनडायरेक्टली मुलव्विस हैं, हम नहीं भी लेते तो भी उसका असर है, उसका वबाल है। अल्लाह तू ही बचाना, बड़ी मजबूरी है अल्लाह, मजबूरी की हालत में है, हमारे तनख्वाह है उसमें आती हैं, हमारे सारे ये उसमें ही हैं। क्या करें हम, करें तो क्या करें हम अल्लाह, तू ही हमें बचाना, हमारी मगफिरत फरमाना, हमें सिराते मुस्तकीम पर चलाना, कामिल ईमान नसीब फरमाना। या अल्लाह कलमा तैयबा वाली जिंदगी अता फरमा, कलमा तैयबा वाली मौत अता फरमा। अल्लाह मौत की सख्ती से बचाना, खबर के अजाब से बचाना, हशर की रुस्वाई से बचाना, पुल सरात पर से बरखरफ्तारी से गुजार देना। अल्लाह के हाथों जामे कोसों पीना नसीब फरमाना, हमारा नामा है अमल हमारे दाहिने हाथ में अता फरमाना। अल्लाह हमें नवाज देना, तेरा दीदार नसीब फरमाना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन खैर की दुआएं मांगे उसमें हमें भी हिस्सा अता फरमा, जिन जिन शुरू से पनाह मांगे उसमें हमें भी पनाह इनायत फरमा। अल्लाह हम ना मांगना नहीं आता, जो टूटी फूटी हम दुआ करें इसे कबूल फरमाना। या अल्लाह हमारे दर्स को भी कबूल भी फरमाना, और ताहयात ताक़ियामत इसे आबाद रखना, ये खालिसतन तेरी रज़ामंदी तेरे खुशनुदी के वास्ते अल्लाह। इसमें कोई दूसरा अहवाए नफ्स ना शामिल हो, कोई दुनियावी मामलात, कोई दुनियावी मनफियत, कोई नाम नमो शोहरत का उनसर शामिल ना हो, शैतान का शर शामिल ना हो। अल्लाह इसे ताहयात ताक़ियामत आबाद रख या हय्यो या क़य्यूम, और इसका सवाब अजर अजीम अता फरमाया। अल्लाह मुझे भी, मेरे माँ बाप को भी, मेरे बच्चे को भी, कुल हमारे साथ रहने वालों को भी, उनके खानदानों को भी, मेरी बहन को भी, मेरी ननन को भी, कुल उम्मत मोहम्मदिया के मरहुमैन को, जिंदों को, मरहूम को, सबको अता फरमाए। तो हमसे राजी हो जाए तो हमारे या क़य्यूम या हय्यु या क़य्यूम या हय्यु या क़य्यूम या ज़ुल जलाली वल इकराम या ज़ुल जलाली वल इकराम या ज़ुल जलाली वल इकराम या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या गफ्फारुज़ ज़ुनूब, हमारे गुनाह बख्श दे। या सत्तारुल उयूब, हमारी सत्तर पोशी फरमा दे अल्लाह, दुनिया में भी आखिरत में भी। या अल्लाह अमरुल ज़ाहिर व बातिन को जानता है तो हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारे दर्स व तदरीस को कबूल फरमा, हक डिलीवर करना हमारा मुकद्दर फरमा दे। या अल्लाह ये बड़ी जिम्मेदारी का काम है या अल्लाह, ये हमें दिया है अल्लाह, तेरा लाखों लाखों करोड़ हाँ शुक्र मेरे मालिक के, ये इतना बड़ा मुआसादत का काम हमें नसीब फरमाया है, तो अल्लाह इसे तो कबूल फरमाना। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। सूरा निसा की आयत नंबर 160। Please, madam, a question. जी What is the difference between istighfar and tawbah? इस्तिग़फ़ार एंड तौबा, तौबा क्या है बोले तो अल्लाह की तरफ, इसका आप रूट वर्ड जान ले तो आपको पता चल जाएगा। ताबा यतूबु से है ये। ताबा बोले तो वो पलटा, यतूबु उसका मुज़ारे आता है फ्यूचर टेंस, वो पलटता है या पलटेगा। यानी बंदा जो गलत काम कर देता है, गुनाह के काम कर देता है, हाँ, अच्छा तो ये ईमान से हट जाता है। मैं कल बताई आपको कि जब भी कोई गलत काम करता है इंसान ने, तो क्या होता है, ईमान से हट जाता है, ईमान उसके दिल से चले जाता है। फिर जब भी वो तौबा करता है, वो पलट जाता है अल्लाह की तरफ, अल्लाह से रुजू कर लेता है, तो ये ईमान कहाँ रहता है बोले तो कहीं दूर नहीं जाता, हमारे सर के ऊपर मंडलाता रहता है। ये एक परिंदे की तरह हमारे सर के ऊपर ही चक्कर काटता रहता है। तो जब भी वो तौबा करता है, अल्लाह की तरफ पलट जाता है, ईमान फिर हमारे दिल में दाखिल हो जाता है। तो ये क्या हुआ, ये तौबा हुई। इस्तिग़फ़ार क्या है बोले तो अस्तग़फ़िरुल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। अब इसका मतलब क्या है, या अल्लाह मेरे से गलती हो गई है, मैं तेरी तरफ रुजू करता हूँ। अतूबु इलैह, अतूबु बोले तो ये मुज़ारे का सीगा है, तीसरा सीगा। यतूबु, ततूबु, अतूबु, नतूबु, ये अतूबु तीसरा सीगा है, वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है। ये ग्रामर आप थोड़ा समझे तो मालूम हो जाता है कि मैं तेरी तरफ पलटता हूँ, मैंने तेरी रहमत मेरे ऊपर साया फगन है, लेकिन अब जो मैंने काम कर दिया है, कोई गलती का काम जो भी बिर बनाए, तभी हमारा जो ये है बशरी तकाजे हैं, इसमें कोई गलती कर बैठे तो दिल से, दिल की गहराइयों से, समीम क़ल्ब से अल्लाह की तरफ रुजू होकर ये जो करता है, ये बाब इस्तिग़फ़ार में आता है। इस्तग़फ़रा अस्तग़फ़िरु इस्तिग़फ़ारन,
यानी बहुत ही निदामत के साथ, बहुत ही शर्मिंदगी के साथ, या अल्लाह मैं ये क्या कर बैठा, मैं नहीं करना चाहिए था, मेरे नफ्स का गलबा आ गया मुझ पर, या शैतान का शर आ गया मुझ पर, इससे निदामत के जज्बे के तहत उसके मगलूब होकर उससे जो अल्लाह की तरफ अपने दिल की गहराइयों से इखलास के साथ अल्लाह की तरफ रुजू करता है ना, वो इस्तिग़फ़ार। अच्छा तौबा अच्छा कर रही है, अल्लाह की तरफ पलट रही। अब अल्लाह भी पलटता है आपके पास साथ, आपके तरफ अल्लाह भी पलटता है। वो कैसा? अब ये जो गलती हो गई थी, इंसान से गलती हो गई थी, उसकी वजह से अल्लाह का गजब हो गया था। अल्लाह की रहमतें हमेशा हमेशा मिलहाल रहती हैं, लेकिन जब इंसान कोई गलती कर बैठता है तो अल्लाह भी नाराज हो जाता है। शायद कि उसका ये रहमतों से भी पलट जाए, रहमतें भी कम हो जाएं। आप जो इस्तिग़फ़ार करता है, अल्लाह हर एक की तौबा कबूल करता है। अल्लाह ने ये अपने जिम्मा ले लिया है कि मेरी रहमत मेरे गजब पर गालिब है, यानी मैं गजबनाक नहीं होना चाहता। ये बंदे ऐसा कर देती हैं, फिर अगर तौबा कर लेती हैं तो फिर मेरी रहमत आ जाती है, पलट जाती है तुम्हारी तरफ। तो अल्लाह पलटता है अपनी रहमतों के साथ, जो थोड़ी देर के लिए चली गई थी। तो ये बात है, समझ में आया? अच्छा थैंक्स। जज़ाकल्लाह, वइय्याकुम। तो हम किस सूरत में थे? 160 में थे। 160 में क्या था? यहूदियों के मुताल्लिक़ बात थी। फबिज़ुल्मिन हाँ मिनल्लज़ीना हादू। हम्म, फबिज़ुल्मिन बोले तो सब उनके जुल्म के सबब उन्होंने क्या जुल्म किया था? वो हालांकि एक साबिक़ा उम्मत मुस्लिमा वही तो थी ना। हम बात के उम्मत मुस्लिमा, अब हम उम्मत मुस्लिमा, अब वो नहीं रहे, नो मोर दे आर उम्मत मुस्लिमा। उन्होंने बहुत से गलत कामों में मुलविस हो गई। तो ये जो उम्मत मुस्लिमा होने का ये जाज, वो रुतबा, वो इम्तियाज हासिल करने के बाद फबी जुल्म मिनल्लज़ीना हादू, जुल्म के सबब उन्होंने क्या क्या जुल्म किए, ये आगे आ रहा है कि ये जो सूद का मामला है उन्होंने शुरू किया है उम्मत मुस्लिमा होने के बावजूद। आज भी उनके पास सूद हराम है, लेकिन सूदी मामला उन्होंने ही शुरू किया है। उसकी शुरुआत का एक वाकया मैं बयान करती हूँ बाद में जब ये आता है। तो उनके जुल्म के सबब मिनल्लज़ीना हादू, जो यहूदी हुए, यानी यहूद, हर्रमना हमने हराम कर दिया, अलैहिम उन पर, तोय्यबातिन पाक चीजें जो उन पर हलाल थी, ऑलरेडी हलाल थी, लेकिन हमने हराम कर दिया। और थोड़ी चीजें हमने पढ़ा है कि याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने ऊपर ऊंट का गोश्त हराम कर लिया था। सबके ऊपर हराम नहीं था, उन्होंने हराम कर लिया था। वो वजह क्या थी? क्या तभी वजह थी? क्या गर्म उनके जिस्म के लिए था, या कोई भी वजह थी? लेकिन ये लोग क्या करे, दूसरे भी उनकी तकलीद में उन्होंने भी हराम कर लिया। तो ये एक गलती थी कि जो हलाल चीज है उसको हराम कर लिया उन्होंने। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तनबीह की गई, जब आपने शहद खाने से शहद को हराम कर लिया अपनी बीवियों के, कुछ वो जो तनाजा हुआ था, वो मालूम है आपको, पिछली बार इसका जिक्र हो चुका। तो उस पर भी आपको तनबीह की गई, पकड़ आ गई कि क्यों आपने बीवियों की खातिर, उनकी दिलजोई की खातिर अल्लाह का हलाल करदा आपने हराम कर लिया। नहीं करना है ऐसा, फिर कफारा अदा करना, फिर उसको तोड़ देना, गलत कसम खाना ही नहीं है। हर्रमना हमने हराम कर दिया, अलैहिम उन पर, तो ये बात इनका ये चीजें जो हलाल थी उन पर, वो हिल्लत हलाल थी, वो हिल्लत हलाल की गई थी, उन पर हलाल थी, लहुम उनके लिए। वो भी सद्दिहिम, और उन्होंने क्या करते थे, ये सौदा या सिद्धू जो है उर्दू में भी आता है, लेकिन उर्दू में थोड़ा स्पेलिंग चेंज हो गई है, सीन से आता है सद्दे बाब जो कहते ना, रोकना, रोकना भी रुकना भी, ये फेल है लाजिम और फेल है मुताद्दी, दो भी आता है, यानी खुद रुकना भी और दूसरों को रोकना भी। ये क्या हो गया, डबल जुर्म हो गया। एक तो खुद रुके, एक गुनाह किया, दूसरों को रोका, डबल गुनाह और बहुत लॉन्ग टर्म का गुनाह। जितने भी लोग इससे रुके रहती, जहां तक भी, जब तक भी रुके रहती, इसका वबाल इनके ऊपर आता है। तो ये बहुत बड़े गुनाह के इर्तिकाब कर बैठे थे, यानी खुद भी रुकते थे और दूसरों को भी रोकते थे। ये कैसा रोकते थे, खुद कैसा रुकते थे, ये हमें पता है, हम इससे पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। यहूदियाँ कैसा रोकते थे, लोग जाकर पूछते हैं, मुशरिकीन काफिरीन जिनके पास किताब नहीं थी, जिनके पास वहदानियत का कोई इल्म नहीं था, शरीयत तरीकत कुछ भी नहीं थी, तो वो बेचारे ना समझे ना खानदार, अनपढ़ गवार,
जिनको मदरसे की कोई तालीम नहीं थी, कोई किताब नहीं थी, वो जाकर पूछते हैं इन लोगों से, भाई तुम किताब के हामिलीन किताब हो, तुम शरीयत तरीक़त तुम्हें मालूम है, तुम्हारे पैगंबरों की औलाद हो, ये जो पैगंबर है आए हैं ये कैसे हैं, क्या ये सही है, क्या जिन्न है, क्या फेक है, क्या जाकर पूछते तो एक का भी सही जवाब नहीं देते थे, गोल गोल कर देते, कंफ्यूज करते थे, चक्करा के छोड़ देते थे इन लोगों को। तो ये सद्दा या सुद्दो, खुद तो रुके ही रुके, अब ये दूसरे जाकर कोई रहनुमाई के लिए जाते हैं, रहबरी के लिए जाते हैं, तो इनको भी गुमराह कर देना, इनकी रहनुमाई नहीं करना, इनकी रहबरी नहीं करना, इनको रास्ता नहीं दिखाना, उनके मुताल्लिक सही बात नहीं बताना, ये भी सुद्दो, सद्दा या सुद्दो में आता है। वो खुद भी रुकते थे और दूसरों को भी रोकते थे। अनसबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते से खुद भी रुकते थे, दूसरों को भी रोकते थे। कसीरन, बहुत ही ज्यादा, हर तरह का हरबा इन्होंने आजमा चुका था। एड़ी चोटी का जोर लगाते थे कि अल्लाह रसूल के रास्ते पर कोई ना आए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो मिशन चल रही है इसमें कोई ना आए, इस्लाम के परवीव में कोई ना आए, इसके वास्ते नो बहुत ज्यादा कोशिशें किया करते थे। तो उसके बाद की आयत देखिए, वो अखज़हिमुर रिबा, और आगे भी बहुत से काम जो मुसलमानों के लिए हराम है, इसमें भी ये मुलविस थे। रिबा क्या है? अल्लाह को भड़काने वाला। इसके मुताल्लिक हदीस कुदसी है कि जो भी सूद का मामला करता है उसके अगेंस्ट क्या है अल्लाह और रसूल की तरफ से? अल्लाह के खिलाफ जंग जंग वेरी गुड, वेरी गुड, जंग का ऐलान, जंग करेगा। अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से जंग का ऐलान है। जो भी सूद में मुलविस होता है, अब हम मुलविस हैं, लामोहल्ला मुलविस है, हम नहीं लेते, डायरेक्ट नहीं लेते, लेकिन सबकी तनख्वाहें उसी में आती हैं और हमारा पैसा हम मजबूरी है कि हम हमारे पास रखते हैं, हमारे पास रखने से हम मजबूर हैं। हम लॉकर में नहीं रखना चाहते, घर में नहीं रखना चाहते, पैसा बैंक में ही रखती हम। अब वो बैंक का पैसा कैसा यूज कर रही हैं बैंक वाले? सूद देने में यूज कर रही नहीं, सूदी मामलात में ही तो यूज हो रहा है, हमारा पैसा भी उसी में यूज हो रहा है, और लाखों करोड़ों का माल है वहां पर, उसमें हम भी हैं, हमारा माल कहाँ यूज हो रहा है? वो लोन दे रहे हैं ना, हम नहीं दे रहे, हम अपने हाथ से नहीं दे रहे, लेकिन उनके देने के कामों में हम रफीकार हैं, हम मददगार हैं, क्योंकि हमारा पैसा उनके पास है जो वो दे रहे हैं दूसरों को सूद पर, हम डायरेक्ट नहीं दे रहे, लामहला जा रहा है, इनडायरेक्टली जा रहा है, अल्लाह हिफाजत पर, ये मजबूरी है। घर में परख है चोरी का या कोई और मसला हो जाता है, उसके बाद कभी कभी ये भी कर देते हैं, वो 500 का नोट निकाला, वो कोई 1000 का नोट निकाला, 200 का नोट निकाला, ऐसा जो कर देती तब बड़ी मुश्किल पेश आ जाती है। अगर पैसा घर में रहा तो फिर उसे कन्वर्ट करना, उसे व्हाइट मनी, ये ब्लैक मनी हो जाता है घर में रखने का। अब क्या करें, ये मजबूरी है। ये मुसलमान कौम, ये शुरू किया है किसने? मुसलमान कौम ने, इस वास्ते उन पर अजाब आया। और मुसलमान कौम, आज की मुसलमान कौम, करंट मुसलमान कौम जिसे कहा जाता है, वो भी इसमें मुलविस है, लामुहल्ला मुलविस है, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब कहा जा रहा है कि वाखिर रिबा, और उन्होंने पकड़ना लिया रिबा में, यानी सूद के मामलात में ये भी शामिल हो गए, इन्होंने सूद लिया। वखद नुहु अनहु, जबकि नुहु मना किए गए थे, हराम किया गया था, उनके ऊपर सूद लेना हराम किया गया था, रोक दिए गए थे वो सूद लेने से। खद कब आता है? कोई माजी का कोई इंसिडेंट को जोर देने के लिए, ऑलरेडी मना किए गए थे, हुक्म आ चुका था, ये नहीं कि मालूम नहीं था, अल्लाह से हुक्म नहीं आया था, आ चुका था, खद आ चुका था। खद नुहु, रोके गए थे, अनहु उससे, ये हु जमीर किसकी तरफ है? ये सूदी मामलात की तरफ। वो अक्लिहिम अम्वालन नास, अक्लिहिम में आकला याकुलु, खाना, उनका खाना, अम्वालन नास, किसका? अम्वाल माल की जमा, अम्वाल नास लोगों का, कुल लोगों का माल इन्हों खाते थे। अब एक तरीके से माल खाना ही है ना, जब इन्हों सूद दर सूद लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, बढ़ता 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 कितना हो जाता है, वो असल से भी बढ़ जाता है वो, तो लोगों का माल खा रही। तो क्या कर रही है ना, हक तलफी कर रही, सबको भी जीने का हक है,
जिंदगी गुजारने का सबको हक है। अब इसमें अगर कोई जरूरत के तहत किसी से पैसा लेता है तो उसका पूरा निचोड़ लेना, उसका खून चूस लेना, उसे मजबूर कर देना, उसका पूरा पैसा हड़प लेना, ये क्या हुआ? बनी नूए इंसानी के हक में हक तलफी हो गई। और ये हक तलफी जो है दूसरों के जिम्मन में ये गुनाह है कबीरा। किसी की हक तलफी नहीं करना है, किसी के हक में डंडी नहीं मारना, सबको जीने का हक है। अब इन वो जीने का हक छीन रहे हैं, कैसा? उसे मजबूर कर देती है, उसे खत्म कर देती है, उसका पैसा सूद में पूरा चले जाता है। आखिर ऐसी नौबत आती है कि कई लोग तो सुइसाइड कर चुके हैं, दे नहीं सकते। अब इनका मुआखिजा बहुत बढ़ जाता है, मतालिबा बहुत बढ़ जाता है, इसे फेस नहीं कर सकते। तो ये जो झोंकती मौत के मुंह में एक गुनाह कबीरा के इर्तिकाब करने पर जो मजबूर कर देती, ये क्या है? इंसानी हुकूक की हक तलफी है। और अमवानुन्नास यानी लोगों का माल खा खा कर उन्हें गलत चीजों पर लाना और मजबूर कर देना, उनकी जिंदगी से मायूस कर देना उन्हें, इन चीजों में ये मुलविस थे। बिल बातिली ना हक नहीं है इनका खाने का। कोई पूछ रहा है, कोई जरूरतमंद है, उसे पैसा दे देना। अल्लाह ने कहा है कि कर्ज हंसना दो। कर्ज हंसना बोले तो एहसन तरीके का कर्ज, यानी कोई जरूरतमंद है उसे पैसा दे दो, जरूरत तो उसकी पूरी होने दो। फिर अगर आकर पूछता है वो कि मुझे और थोड़ी मोहल्लत देना, मुझे पैसा नहीं मिला है, अभी नहीं रिटर्न कर सकता, तो मोहल्लत दो। ये मोहल्लत का टाइम तुम्हारे वास्ते क्या होगा? ये सवाब का बाइस होगा। जितनी देर तुम दोगे सवाब का बाइस होगा। और अगर लाचार मजबूर होकर वो नहीं दे सकता, आपको लौटा नहीं सकता, तो क्या कर दो? बेहतरीन तरीका क्या करना? माफ कर देना। माफ कर देना। हाँ, सदक़े की नियत कर देना, सदका खैरात की नियत कर देना। ये तो यहाँ लेने से बहुत बेहतर है कि वहाँ तिजारतन लन तबूर हो जाएगा, यानी कई गुना, कई टाइम्स बढ़ जाएगा, वो 1000 टाइम बढ़ जाए, अब बेहिसाब बेशुमार बढ़ जाए। तुम्हारी नियत क्या रहती है उस पर। वहां जाकर देखेंगे अल्लाह ये कहाँ से मिला, ये कौन सी नेकी थी जिसके मुंह में, जिसके अवज मुझे तो इतना दे रहा है। कहेगा अल्लाह वो जो तूने एक मुश्किल में फंसा हुआ आदमी का वो जो माफ कर दिया ना, यहाँ वो बढ़ 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 के इतना हो गया है, ये तो बहुत ज्यादा है। कई ऐसे हो जाते हैं, कोई नहीं दे सकता, अब उनके ऊपर गुस्सा रख लेकर उनके ऊपर ये करना, उनके उनसे ला ताल्लुकी बरतना, उसके बजाय बेहतरीन तरीका क्या है? अल्लाह के वास्ते सदका जा बोल को आमीन, अपनी नियत कर लेना, उसे बोलने की जरूरत नहीं। नियत कर लिया तो अल्लाह नियत के बराबर उसे खूब बढ़ा देता है, एक तनावर दरख्त होकर रहता है। आप देखती हैं कि ओहद के पहाड़ के उतना होता है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि ये जो लोग खा रहे हैं, लोगों का माल खा रहे हैं, लोगों का खून चूस रहे हैं ना हक, तो इनके लिए क्या है? अल्लाह कह रहा है वातदना, हमने तैयार किया, लिल काफिरीना, काफिरों के लिए, मिनहुम उनमें से, अजाबन अलीमा, जो काफिर हैं उनमें से, उनमें अच्छे भी हैं। नेक्स्ट आयत में जिक्र आ रहा है जो काफिर हैं, जो ऐसे काम करते हैं, उन लोगों के लिए हमने अजाबन अलीमा, दर्दनाक अजाब उनके लिए तैयार रखा है। कहा जा रहा है यहूदियों के बारे में कि और ये लोग सूद लेते हैं जिससे उन्हें मना किया गया, नुहू मना किया गया, और लोगों के माल नाजायज तरीकों से खा जाते हैं। हमने बहुत सी वो पाक चीजें हराम कर दी है इन पर जो पहले इनके लिए हलाल थी। ये ऐसे ही कामों की वजह से, ऐसे ही गुनाहों की वजह से उनके ऊपर हमने हलाल चीजें जो पहले हलाल थी उसको हराम कर दिया, इन्हीं की करतूतों की वजह से। और जो लोग इनमें से काफिर हैं उनके लिए हमने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। नेक्स्ट आयत, आया नंबर 162। लाकिन रासिखूना, अब ये एक इस्तिस्नाई कैफियत, सब खराब नहीं है, नो जनरलाइजेशन। लाकिन रासिखूना फिल इल्मी मिनहुम वल मुमिनूना युमिनूना बिमा उनजिला इलैका वमा उनजिला मिन क़ब्लिका वल मुक़ीमीना अस्सलाता व मुतूना ज़काता वल मुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर।
उलाइका सनुतिहिम अजरन अज़ीमा। अब इनमें जैसे कि अब्दुल्ला इब्न सलाम थे और किसी कोई नाम उबैद आतिला या कुछ ऐसा ही नाम आ रहे, बहुत से नाम आ रहे, लेकिन ज्यादा फेमस तो अब्दुल्ला इब्न सलाम का ही है। तो वो लोग क्या थे, इस्लाम ला लिए थे, उनको मालूम था, वो भी चोटी के आलिम थे, अब्दुल्ला इब्न सलाम चोटी के आलिम थे, तो इस्लाम ला लिए, उनको मालूम हो गया ये सही पैगंबर है, इन्हीं के मुतालिक ये जो पेशन गोइयां हमारी तौरात में दी गई हैं यही है। वो झट से ईमान ला लिए और उनके साथ बहुत से भी ईमान ला लिए। तो अल्लाह ये जो पिछली आयत आई ना, ये जो है इन्होंने रिबा खाया, अल्लाह के अहकामात की खिलाफ वर्जी की और लोगों को नाहक ये नाजायज तरीके से लोगों को लूटा, खून चूसा, सूद के मामलात किए इन्होंने, तो इसकी वजह से हराम कर दिया इन पर, तैयब चीजें हराम कर दिया। इसके बरअक्स सूरत बता रहा है कि लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं उनमें जो लोग पुख्ता इल्म रखते हैं। ये वर्ड देखिए आप, लाकिन रासिखूना, लाकिन लेकिन है यानी मगर, हम जो मगर कहते हैं लेकिन भी कहते हैं हम, रासिखूना ये उर्दू वर्ड है, रासिख रुसूख से है। हम रुसूख कैसा यूज करते हैं, इन्फ्लुएंस को यूज करते हैं, किसी का वास्ता है, किसी का इन्फ्लुएंस है, कोई पॉलिटिकल लीडर का इन्फ्लुएंस है या मिनिस्टर का है या कोई भी मजहबी लीडर का है या कुछ भी है, हम ऐसा यूज करते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, रासिख होने से मुराद जड़ तक पहुंचना, ज्यादा डीप चले जाना। जड़ जैसा एक झाड़ की जड़ अंदर जाती है ना, उससे क्या होता है, पुख्ता हो जाता है झाड़। हाँ, वो ऊपर ऊपर रहा तो झाड़ पुख्ता नहीं होता, ऊपर नहीं आता, तनावर दरख्त नहीं होता। लेकिन जब उसकी जड़ अंदर, जड़ पकड़ना बोलती है ना, जमीन में जड़ पकड़ती है, वो जब रासिक हो जाती है तो मजबूत हो जाती है ना। तो यहाँ कहा जा रहा है कि मगर ऐसे लोग भी उनमें थे जो अच्छा इल्म जानने वाले थे, ज्यादा गहराई में इल्म जानने वाले थे, फिल इल्म में मिनहुम उनमें से, वल मुमिनूना और जो ईमान लाए थे, युमिनूना बिमा उनजिला इलैका, वो ईमान लाए, युमिनूना बिमा उनजिला इलैका जो आप पर नाजिल हुआ, नाजिल किया, उनजिला नाजिल किया गया, नाजिल किया गया मजहूल, इलैका आप पर यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि आप पर जो नाजिल किया गया यानी किताब कुरान पर उन्होंने ईमान लाया है। वमा उनजिला मिन क़ब्लिका, आपसे पहले भी जो किताबें आई हैं, जबूर, तौरात, इंजील, सुहुफी इब्राहिम, बहुत से आई हैं जिनका इब्राहिम के सुहुफ का तो कहीं पता नहीं है, लेकिन बहुत से जो किताबें आई हैं आपसे पहले उस पर भी ईमान लाए। यानी यहूदियों में से ही एक ग्रुप ऐसा है जो रासिख हैं इल्म में, जो ज्यादा गहरे हैं इल्म में, जो जानती, और ये उनका क्या रवैया है, आपकी किताब पर भी, आप पर नाजिल हुई किताब पर भी ईमान ला रहे हैं, और आपसे पहले जो नाजिल हुई मिन क़ब्ल, आपसे पहले उस पर भी ईमान लाए, और उनके सिफात सारे अल्लाह के अहकामात के तहत आगे बयान किया जा रहा है। वल मुकीमून अस्सलाह, और जो कायम करते हैं, खामा या खामों से आ रहा है, ये मुखीमूना मुखीमीन, ये जर आ रहा है क्योंकि उस पर एक कोई आमिला हुरूफ है जिसकी वजह से ये या नून आया तो ये जर्री है, ये जमा सालिम ही है ये, लेकिन ना या नून आया तो जर्री, वो नून आया तो जर नहीं होता, वो मारूफ है, ये जर्री हालत में है। मुखीमीन जमा है, कायम करने वाले, कायम रखने वाले, किसे, नमाज को, सलाह को कायम करने वाले, वल मुतूना और अदा करने वाले, आता युती देने वाले, अदा करने वाले, ज़कात ज़कात देने वाले, वल मुमिनूना और ईमान लाने वाले, किस पर, बिल्लाही अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरी और आखिरत के दिन पर। ये लोग जो काफिर मुशरिक सब इनकार करते थे, मरने के बाद कुछ भी नहीं, खत्म, जिंदगी खत्म हो गई तो खत्म, अब उठाने वाला भी नहीं, अल्लाह, अल्लाह कैसा उठाएगा, नहीं उठाएगा। वो अबू जहल एक बोसीदा सी एक हड्डी लेकर आता, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक के सामने नचाता, कहता क्या है मोहम्मद,
क्या तुम समझते हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुम समझते हो कि ये हड्डी, ये जो बोसीदा हो गई है, कुछ भी नहीं है इसमें, तो इससे फिर नई असर नो तखलीक करेगा अल्लाह, फिर उठाएगा हमें? कहीं हो सकता है? मज़ाहिया तंजिया तौर पर ऐसा किया करता था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुज्जतबाजी किया करता था। तो उसके बरक्स ये लोग, ये जो यहूद हैं, वल यौमिल आखिर, आखिर पर भी ईमान रखते हैं, उलाइका सनुतीहिम अजरन अजीमा। आपको इससे पहले मैंने सा और सौफा का डिफरेंस बताया। सा बोले तो इमीडिएट, इमीडिएट दे देना, इमीडिएट। सनुतीहिम उलाइका, यही लोग हैं, यानी इन सिफात के हामिल लोग जो ईमान लाए, ये सारे औसाफ जो उनके हैं, नमाज अदा करना, ज़कात देना, यौम आखिर पर उनका ईमान होता है, तो यही लोग हैं जिन्हें सनुतीहिम, सा जल्द ही, बहुत जल्द, नूती देंगे, हिम उनको, हम देंगे, जरूर देंगे उन्हें, अजरन अजीमा, अजीम अजर उन्हें मिलेगा, जल्द ही मिलेगा। हजरत अब्दुल्ला इब्न सलाम और वो जो दीगर और आपके साथियां जो यहूद ईमान लाए, उनके मुताल्लिक कहा जा रहा है कि सब ऐसे नहीं हैं जो पिछली आयत में जिक्र हुआ, सब इस तरह के नहीं हैं। इनमें जो लोग पुख्ता इल्म रखने वाले हैं, रासिख हैं, इल्म में रासिख हैं, पुख्ता इल्म रखने वाले हैं और ईमानदार हैं, ईमान वाले हैं। ये सिर्फ इल्म रखना काफी नहीं है, ईमान शर्त है, हर अच्छे काम को ईमान शर्त है। ये जो अगयार हैं, क्रिश्चियनिटी के ये जो ऑर्गेनाइजेशन हैं या दूसरे भी हैं, बहुत अच्छे काम करते हैं, बहुत भलाई रिफाई के काम बनी हुई इंसानी के हम नहीं करते, उतना ये लोग करते हैं, लेकिन उनका मकबूल नहीं है क्योंकि ईमान नहीं है। ईमान शर्त है हर काम की मकबूलियत के लिए। जो ईमानदार हैं और सब इस तालीम पर ईमान लाते हैं जो तुम्हारी तरफ नाजिल की गई है, यानी किताब पर, कुरान शरीफ पर ईमान लाने वाले, और जो तुमसे पहले नाजिल की गई थी, वो जो दीगर जबूर, तौरात, इंजील, ये सारी किताबों पर ईमान रखने वाले। इस तरह के ईमान लाने वाले और नमाज, ज़कात की पाबंदी करने वाले और अल्लाह और रोज़े आखिरत पर सच्चा अकीदा रखने वाले लोगों को हम जरूर अजर अजीम अता करेंगे। सनुतीहिम अजरन अजीमा, ऐसे ही लोग हैं, उलाइका, यही लोग हैं जिन्हें हम अजर अजीम अता करेंगे। आया नंबर 163, इन्ना औहैना इलैका। अब यहाँ से 3-4 आयतों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है, इन्ना दरमियानी मद आई है, यकीनन हमने, औहैना वही की, हमने वही भेजी या वही की, इलैका आपकी तरफ, कमा औहैना, का आता है तशबीह के लिए, जैसा के, माँ, कमा, जैसे, औहैना हमने वही की, इला नूहिन, नूह के ऊपर, नूह की तरफ हमने वही की, इला नूह वन नबिय्यीन मिन बादिही। ये क्यों आया देखेंगे हम। जैसा कि हमने नूह की तरफ वही की थी, वन नबीना, और दूसरे नबियों पर भी, मिन बादी ही जमीर नूह की तरफ, नूह के ऊपर भेजा हमने वही, उसके बाद उनके बाद आने वालों पर भी हमने वही भेजी थी, इसी तरह हमने आप पर भी भेजा है। ये क्यों आई है बात? ये लोग कहा करते थे कि आप पर ही क्यों, मुशरिकीन कहा करते थे कि आप तो यतीम हो, गरीब हो, नाखानदा हो, कभी मदरसे की पढ़ाई नहीं मालूम, अलिफ बा ता सा नहीं मालूम, आपको ही चुना क्या अल्लाह, आप पर ही आई क्या, अल्लाह ने आप पर वही भेजी, आप ही थे जो मिले अल्लाह को। ये ऐसा मुशरिकीन और कुफार वहाँ मक्का में किया करते थे, और यहाँ यहूद भी इसी तरह के थोड़ा अलग टाइप से इनकी भी हुज्जतें होती थी। आप कैसे नबी, आपने तस्नीफ किया है, कौन लाता है, किसने देखा है, जिब्राइल लाता है आपके पास, वही किसने देखा, कब आया, जैसा मूसा अलैहिस्सलाम के साथ किया करते थे हुज्जतें, इसी तरह की हुज्जत ये लोग भी करते थे। तो इसलिए कहा जा रहा है कि ये कोई नया नबी नहीं है, आपकी किताबों में आया है, नूह अलैहिस्सलाम थे, उसके बाद दीगर कई पैगंबरान थे, 25 पैगंबरों की, 25 रसूलों की बात आ रही है ना,
25 हैं, 24 या 25 हैं। ये एक इख्तिलाफी मसला आ रहा है, तो जुल्किफ्ल के बारे में आ रहा है। कई कहते हैं कि वो नबी नहीं थे, कई का ये है कि ये थे, नबी थे। तो 25 की बात आ रही है। तो उन सारे पैगंबरों पर नबी आई, वहां वही आई ना, तो तुम्हें इस रसूल पर वही भेजने पर क्यों ये एतराज? नूह अलैहिस्सलाम पर आए, उनके बाद के नबियों पर हमने वही भेजी, जैसा उन पर भेजी वैसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पर भी भेजी है। ये कोई अनोखी बात कैसे हो गई? तुम्हें मालूम है, तुम किताब के हामिल हो, किताब पढ़ने वाले हो, तो कौन कौन पैगंबर इससे पिछले पैगंबर थे, सब पर भी तो वही आई ना। तो ये एक ही तुम्हें अनोखी बात क्यों लग रही है? औहैना इला नूहिम वन नबिय्यिना मिन बादिही वो औहैना इला इब्राहिम। फिर आगे भी और कई पैगंबरों को अल्लाह कह रहा है कि जैसा इन लोगों पर भेजा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर भेजा, वो इस्माइल और इस्माइल पर, इसहाक अलैहिस्सलाम पर, याकूब अलैहिस्सलाम पर, और असबात याकूब यानी औलाद याकूब पर, 12 बेटे थे, उन पर भी वही भेजी, वो भी पैगंबर थे। और ईसा पर, वो अय्यूब अलैहिस्सलाम पर, यूनुस अलैहिस्सलाम पर, वो हारून अलैहिस्सलाम पर, वो सुलेमाना, वो आतैना दाऊदा जबूरा। सब पर भी हमने, ये सारे पैगंबरों पर 25 का जिक्र आ रहा है, ये सब पर हमने वही भेजी है, सबको फरिश्तों के जरिए ही भेजा है, डायरेक्ट कोई नहीं आया। ये और एक भी किया करते थे, क्यों हमारे सामने नहीं आता फरिश्ता, हमें डायरेक्टली क्यों नहीं कहा जाता कि ये पैगंबर है, हमने इनको मुतय्यन किया है, पैगंबर का मनसब पर फायज किया है, तुम इसको मानो, इसकी पैगंबरी को तस्लीम करो। क्यों नहीं हमें ये एक लिखा हुआ तहरीर शुदा एक बात आई अल्लाह की तरफ से? ये सारे इनके तंजिया कलामी थी जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगेंस्ट ए लेवल किया करते थे। तो उसके जवाब में ही दिया जा रहा है कि ये कोई नई बात नहीं है, सब पर भी हमने वही भेजी है, फरिश्ता ही लेकर आया है। ये सारे पैगंबर जिनका ये एनलिस्टेड दे आर हियर, तो उन सब पर आए है ना। और दाऊद पर जबूर भेजा है, मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात भेजा है, उसकी बात यहाँ नहीं आई, ये कह के छोड़ दिया। अब ये गोज विदाउट एक्सप्लेनेशन कि मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात भी आई, इंजील आई ईसा अलैहिस्सलाम पर। तो ये सब पहले हुआ ना, तुम्हें इसमें शक क्यों, शुबा क्यों? ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर को तसल्ली देकर यह कहा जा रहा है कि हमने तुम्हारी तरफ इस तरह वही भेजी है जिस तरह नूह अलैहिस्सलाम पर और उसके बाद के पैगंबरों की तरफ भेजी थी। हमने इब्राहिम पर, इस्माइल पर, इसहाक पर, याकूब पर, दाऊद अलैहिस्सलाम पर, और याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद पर, याकूब पर, ईसा पर, अय्यूब पर, यूनुस पर, हारून पर, और सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी। हमने दाऊद को जबूर भी दिया। तो ये सारा सब कुछ होता आ रहा है ना, तो इसी तरह आप पर भी हुआ है। तो ये लोगों को शक क्यों होना चाहिए? एक तरफ तो जवाब उन्हें दिया जा रहा है उनके शिकायतों का, और दूसरी तरफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि ये कोई अनोखी बात नहीं है, आप भी दूसरों की तरह ही पैगंबर हो, उनकी बातों को सीरियस लेने की आपको जरूरत नहीं है। इससे आगे और बड़ी दी जा रही है, इन्नका लमिनल मुरसलीन, किसमें दिया है? सूरह यासीन में। कोई कहे ना कहे, यहाँ भी आ रहा है, बाद में आ रहा है कि कोई कहे ना कहे आपको पैगंबर, कोई माने या ना माने आपको रसूल, हम हैं आपको, आप यकीनी पैगंबर ही हैं, कोई कहने की जरूरत नहीं है, आपको किसी से इसकी सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, अल्लाह है सर्टिफाइड, आप पैगंबर हैं। इन्नका लमिनल मुरसलीन, यू आर अमंग्स द मुरसिल, यानी भेजे हुए रसूलों में से हो तुम। वो रुसुलन खद खससनाहुम अलैका मिन क़ब्लु व रुसुलन लम नक़्सुसहुम अलैक व कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा। वो रुसुलम खद खससनाहुम, और ऐसे रसूल भी हैं, यानी आपको जो जो भी हम बता रहे हैं ये वाकयात, आपको तो नहीं मालूम थे सबके वाकयात, हम आपको बता रहे हैं। ऐसे रसूल, जमा का सीगा है ये, रसूल, रसूल की जमा रसूल, ऐसे रसूल खद खससनाहुम, हमने उनका अहवाल सुनाया। खससना, खसस किस्सा बयान करना,
نہ ہم उनके मुताल्लिक यानी वो रसूलों के मुताल्लिक हमने उनका जो किस्से हमने बयान किए अलई का आप पर आपसे मिन क़ब्ल इससे पहले जो आपसे पहले थे उनके मुताल्लिक हमने आपको बयान करके सुनाया है चन के सुनाए हैं और ऐसे भी रसूल हैं वो रसूलन और ऐसे रसूल लम नख्सुसहुम लम नहीं ला के मतलब में आता है मुजारे पर आता है नफी करता है और हमने लम नहीं नख्सुसहुम नख्सुस हमने बयान किया हुम उनको यानी चंद और पैगंबर हैं जिनका आपके सामने जिक्र नहीं किया सारे पैगंबरों का जिक्र कुरान में नहीं है चंद एक 7-8 कुछ आया है हालांकि पैगंबर कितने हैं 25 है 24 या 25 है जो जुल्किफ्ल का एक मुतनाज़ इशू है कोई कहते हैं नबी है कोई कहते हैं नहीं है उसके अलावा हम माने तो 25 पैगंबर है 25 के 25 का जिक्र कुरान में नहीं आया है यहाँ अल्लाह बता रहा है कि सबका जिक्र हमने नहीं किया है चंद एक का जिक्र यहाँ आपके सामने बयान किया और बहुत से हैं जिनका जिक्र हमने नहीं किया है लम नख्सुसहुम अलैका आप पर हमने बयान नहीं किया चंद और पैगंबरों का जिक्र अब आखिर में आ गया चंद पैगंबरों को बहुत ही खुसूसियाती चीजें अता कर दी थी अल्लाह ने खासा जिसे हम बोलते हैं ना खासा खुसूसी चीजें किसके ऊपर था ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर भी था कि अल्लाह ने चंद ऐसे औसाफ उनको दे दिए थे तख्लीकी जो अल्लाह की सिफत है अल्लाह खालिक है लेकिन अल्लाह ने कुछ उनको भी दिया था परिंदा गारे का पुतला गारे से परिंदे की शक्ल बना देते थे और उसको फूंकते तो वो उड़ने लग जाता था और मुर्दे को अगर कहते खुम खड़ जा बोले तो खड़ जाता था किसी का जिक्र भी आ रहा है खुम या लाजर कोई लाजर नाम वाला कोई मुर्दा था जिसको कहा हुक्म दिया खुम बोले तो खामा या खुम उठ जा खड़ जा वो खड़ जाता था तो ऐसे खुसूसी खासी चीजों से नवाजा था चंद एक पैगंबर को और मूसा अलैहिस्सलाम को तो हद ही कर दी अल्लाह ने जमीन पर रहकर अल्लाह से हम कलामी का शर्फ दे दिया जमीन पर रहकर कोई जड़ी बूटी ले गए उस पास वहां गए जो पहले खा चुके थे अल्लाह के इज़्न से अब खाए तो नहीं हुआ असर नहीं हुआ पेट का दर्द नहीं गया तो अल्लाह से वहीं से पुकारा या अल्लाह तूने पहले कहा था ना इसी जड़ी बूटी को खाने से तुम्हें शिफा होगी अब ने मैं खाया है अब मैंने खाया इसको लेकिन मुझे शिफा नहीं हुई बदस्तूर बाकी है ये पेट का दर्द तो अल्लाह ने कहा नहीं आए मूसा उस वक्त मेरी मर्जी मेरी रजा मेरा हुक्म शामिल हाल था अब नहीं है तूने खुद जाकर खाया है हाँ तुझे मालूम था तूने खा लिया अब जाओ अब खाओ मेरा हुक्म है उसको अब तुम्हें शिफा देगी यानी हमें इससे दलील पता चलती है कि कोई दवा कोई चीज हमें शिफा नहीं दे सकती एक्सेप्ट मगर अल्लाह के हुक्म से अल्लाह का हुक्म हो तो कोई भी चीज शिफायाब हो सकती है हमारे वास्ते तो ये एक खासा दिया था अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को तो जमीन पर रहते हुए बात करते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये नहीं दिया था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खासा अलग है कुरान है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बात करना हो तो अल्लाह ने मेराज पर बुलाया 7वें आसमान पर बुलाया वहां पर उन्होंने सिदरतुल मुंतहा वहां जाकर अल्लाह से हम कलामी का शर्फ अल्लाह ने दिया जमीन पर नहीं दिया जमीन पर दिया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दिया बहुत बातें हुआ करती थी तो ये खासियत अल्लाह ने दिया अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या दिया सबसे इम्तियाजी खासा ये सारी चीजें जो हैं ये असा है या जो भी है और ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जो ये सब उनकी शख्सियत के साथ थी उनकी जिंदगी के साथ थी यानी उन्होंने जब तक जिंदा हैं उनके हाथ में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में असा है तो वो करतब दिखाता है तो वो मोजज़ाती काम करता है उनके हाथ से निकल के अब असा है अब असा ताबूत सकीना में है वो जो मलबे में डूबा हुआ मलबे में है बैतुल मक़दस के नीचे जो तहखाने हैं वहां मलबे में है ये लोगों का ये है दावा है कि वो है अभी भी है कभी निकाल लेंगे वो अभी भी है मलबे में है लेकिन अब वो नहीं काम करता वो मोजज़ाती ये काम नहीं करता अब वो सिर्फ लकड़ी का
वो आसा है, वो बस वो लकड़ी है जो टेक लगा कर चल सकती या दूसरा काम भी ले सकती, पत्ता झाड़ने का भी काम वो लिया करते थे, बताया उन्होंने ये काम कर सकते हैं। मोजज़ाती काम अब नहीं करेगा वो, अब उनके हाथ में नहीं है। यानी उनकी जिंदगी तक उनकी शख्सियत के साथ जुड़ा हुआ था, उनकी इनफरादी तौर पर उन्हीं से जुड़ा हुआ था, दूसरे के हाथ में वो काम नहीं करता था। ऐसा ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का, ऐसा ही दूसरे पैगंबरों का उनकी शख्सियत के साथ, उनकी इनफरादियत के साथ जुड़ा हुआ था। लेकिन जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया है, सबके साथ जोड़ दिया अल्लाह। अब हम पढ़ रहे हैं, हमारे पास है कुरान में, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के साथ खत्म नहीं हो गया, वो सब खत्म हो गया। आसा की मोजज़ाती ये खत्म हो गई, बाकी दूसरे सब सारे ये जो मोजज़ात दिए गए थे सब खत्म हो गए। ये जो दिया गया अल्लाह को सबसे बड़ा मोजज़ा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये कलाम अल्लाह है। ये जो सबके हाथ में है, हमारे भी हाथ में है, हमारी सादत है, हमारी खुशकिस्मती है कि ये हमारे हाथ में है, सबके हाथ में है, सबके वास्ते रहबरी कर रहा है, सबके वास्ते रहनुमाई कर रहा है। ये ना हो तो क्या होता था, इमेजिन कीजिए। तरका कैसा डिसाइड होता, शादी तलाक के मामले कैसा डिसाइड होते, यतीम का मामला कैसा डिसाइड होता, बीवी के हुकूक, शौहर के हुकूक, बच्चों के हुकूक, ये सब कैसा होता, कैसी अनोखी फैल जाती, कैसा कयास चलता, क्या क्या होता, क्या क्या फसादत होते, लोगों की जिंदगी कोर्टों में, कचहरों में, फैसलों में, इसी में गुजर जाती। ये बहुत बड़ा मौजज़ा है, ये बहुत बड़ा करम है अल्लाह का हम पर। ये अल्लाह कह रहा है कि सबसे बड़ा मौजज़ा जैसा दूसरों को दिया था, वैसा हमने तुमको तो ये बहुत बड़ा मौजज़ा दिया है। हमने उन रसूलों पर भी वही नाजिल की जिनका जिक्र हम इससे पहले कर चुके हैं, और इन रसूलों पर भी जिनका जिक्र तुमसे नहीं किया। हमने मूसा अलैहिस्सलाम से इस तरह गुफ्तगू की जिस तरह गुफ्तगू की जाती है। अब ये एक नोट करिए, कल्लमा कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, ये कल्लमल्लाहु काफी था ना, तकलीमा कई को आया है, मेरी वो स्टूडेंट मुझे याद आ जाती है, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस का आला तरीन मुकाम अता फरमाए। ये कल्लमा जब फेल आता है ना, उसके बाद ये तकलीमा जो है ये मस्दर है। ये कल्लमा के बाद, फेल के बाद जब मस्दर को लाया जाता है तो जोर होता है, बयानिया अंदाज में जोर दिया जाता है, जोर के लिए, ताकीद के लिए, शिद्दत के लिए होता है। यानी जिस तरीके का कलाम हुआ, ये कोई मामूली बात तो नहीं थी ना, इंसान जमीन पर होता हुआ अल्लाह से हम कलामी करे, अल्लाह से बात करे, ये कोई मामूली बात तो नहीं है। तो जिस तरह बातचीत की जाती है, उस तरीके से बातचीत हुआ करती थी। कल्लम अल्लाहु, अल्लाह कलाम करता और कलाम किया अल्लाह मूसा से तकलीमा, जैसा के कलाम किया जाता है। नेक्स्ट आया नंबर 165, रुसुलम मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन लिअल्ला यकूना लिन्नासि अलल्लाहि हुज्जतुम बादर रुसुल। अब रसूलों को क्यों भेजा है, ये हुज्जत कायम कर दिया हमारे ऊपर। ये सारे रसूल खुशखबरी देने वाले और डराने वाले बनाकर भेजे गए थे। रुसुलम जमा आ गया, मुबश्शिरीना, बश्शरा युबश्शिरु तबशीर, बाबे तफील से आता है। ये खुशखबरी देना, बहुत ज्यादा खुशखबरी देना। क्या खुशखबरी दे रही, जन्नत की खुशखबरी दे रही। तुम्हारे अमाल अच्छे हो तो तुम सीधा जन्नत में जाओगे, ठोकरें नहीं खाओगे। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, बाबे तफील में लाया जा रहा है। ये रसूल क्या है, खुशखबरी सुनाने वाले हैं, किसको, ईमान वालों को। और डराने वाले किसे, मुंजिर, डराने वाला, मुंजिर इस्मुल फाइल है, इंजार इसका मस्दर है, डराने वाला, मुंजिरीन ये डराने वाले जमा का सीगा। और डराने वाले, ली अल्लाह यकून, ली लामे तालील है वजह बताने के लिए, अल्लाह ये मुरक्कब इजाफी है, अन और ला का कॉम्बिनेशन है ये, ताकि ना रहे, अन के ला नहीं, के ना रहे, लिन्नासी लोगों के लिए, अल्लाही हुज्जत लोगों पर, हुज्जत लोगों के लिए हुज्जत का एक चांस ना रहे। क्या हुज्जत, सूरह इब्राहिम में आया है, हाँ सूरह इब्राहिम में आया नंबर क्या है वो, उसमें अल्लाह मुशरिकीन, काफिरीन और लोगों की एक क्या बोलते हैं, एक गुमान की तर्जुमानी कर रहा है। यानी अगर अल्लाह किताब ना भेजता, रसूलों को ना भेजता, तो ये
हुज्जत लेकर आते अल्लाह के पास के, अरे अल्लाह हमें तो किताब भेज देता, रसूल भेज देता तो हम सबसे बड़े ईमान लाने हो जाते थे, ईमान लाने वाले ईमान वालों में हो जाते थे। हमें ये तकलीफ हुई, ये झेलने की, ये दोजख में झोंके जाने की हमें क्या क्या जरूरत पड़ती थी, हम भी ईमान वाले हो जाते थे ना। काश के तो एक रसूल भेज देता, काश के तो एक किताब भेज देता, ये हो सकता था। तो ये गुंजाइश भी अल्लाह ने नहीं रखा। ये सूरह इब्राहिम की आयत है ये। तो अल्लाह ने ये भी हुज्जत पूरी कर दी। कोई हुज्जत ली अल्लाह यकूनन नास यकूना ली अल्लाह यकूना लिन्नासी, ताकि कोई हुज्जत बाकी ना रहे, ये ना कहे इंसान के अल्लाह तो भेजता तो हमें बड़े ईमान के कामिल दर्जे पर होते ना, हम तेरे मानने वाले होते, तहे दिल से मानने वाले होते, हमारे से ज्यादा ईमान वाला कौन होता। नहीं भेजा ना तू, ऐसी बात ही नहीं रखी अल्लाह ने, ये हुज्जत के काबिल ही नहीं छोड़ा। अल्लाह अल्लाह पर कोई हुज्जत, अब हुज्जतन कोई हुज्जत करने का चांस ही नहीं है, गुंजाइश ही नहीं रखा अल्लाह। बादर रसूली, रसूलों के बाद यानी रसूल को भेज दिया, अब हुज्जत की कोई चांस ही नहीं है। वो कान अल्लाह अजीजन हकीमा, और अल्लाह बहुत गालिब है, कुदरत वाला है, गलबे वाला है। लेकिन गलबे वाला है बोल को, जैसे यहाँ किसी को करप्ट ये मिल गया तो पावर मिल गया तो क्या होता है, बेजा यूज करता है। जैसा पावर आज यूज हो रहा है, जैसा ऊपर बैठा है, बेजा जा बजा जो यूज करते हैं, कई कई यूज कर लेते हैं, कैसे कैसे ये पास करती है, रूल्स पास करती है, रेगुलेशंस पास करती है, इंसानों के हुकूक को हड़प कर लेते हैं, उनका वोटिंग राइट निकालो, इनका ये निकालो, उनकी जायदाद हड़प करो। ये सारे जो होते ना, ये इंसान को अगर गलबा दे दिए, पावर दे दिए तो क्या होता है, पावर करप्ट्स मैन, इट करप्ट्स एब्सोल्युटली, पावर करप्ट्स एंड इट करप्ट्स एब्सोल्युटली। वैसा नहीं है। अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह हालांकि गलबे वाला है, जबरदस्त गलबे वाला है, लेकिन हकीम है, उसका हर काम हिकमत पर मबनी है। ऐसा नहीं करता, अंधेर नगरी चौपट वाला मामला नहीं है। अल्लाह बहुत हिकमत से काम लेता है। गुनाह करता जा रहा है, अगर इंसान की हर चीज पर पकड़ हो जाए तो कोई दुनिया में नहीं रहता, कोई जीरो यहाँ रुए जमीन पर रहता ही नहीं। तो अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की हिकमत है, हालांकि अल्लाह गलबे वाला है। तो इसमें एक और बात आ रही है, क्या है ये सारे रसूल खुशखबरी सुनाने वाले। इसके मतलब कोई हिकायत भी है, याद नहीं जब याद आया तो मैं बताती हूँ आपको। लाकिनिल्लाहु यशहदु बिमा अंज़ला इलैका अंज़लहु बिइल्मिही वल मलाइकतु यशहदून वकफा बिल्लाहि शहीदा। लोग नहीं मानते तो ना माने, यही जो पहले आ गए ना, इन्नका लमिनल मुरसलीन, है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है नबी, आप इनके बातों में ना आइए, ये गवाही ना देते कि आप रसूल नहीं हैं, आप कौन है, कैसा रिसालत आपको मिल गई, सब नहीं थे क्या, अल्लाह को आप ही मिले क्या। ये बातें ये जो कर रही है, आपको ये ईजा ना पहुंचाए, आपको गमगीन ना करे, इन बातों से गमगीन ना हो। लोग ना मानते हैं तो ना माने आपकी बला से, मगर अल्लाह गवाही देता है कि जो कुछ उसने तुम पर नाजिल किया है, अपने इल्म से नाजिल किया है। यानी आपकी जो तसनीफ करदा, ये लोग कह रहे हैं आपने घर लिया है, रात को कोई जिन आता है, कोई सिखाता है, सुबह आप लोगों के सामने बयान कर देते हैं, और आपकी तसनीफ करदा आपका घर लिया हुआ है, ये नहीं है। ये लोग जो कह रहे हैं, ये आप पर नाजिल किया है अल्लाह ने, अपने इल्म से नाजिल किया है, और इस पर मलाइका भी गवाह है। अगरचे अल्लाह का गवाह होना बिल्कुल किफायत कर जाता है, कोई गवाही की जरूरत नहीं है, मलाइका भी गवाह होने की जरूरत नहीं है, अल्लाह की गवाही काफी है। वो कफा बिल्लाहि शहीदा, अल्लाह की गवाही काफी है, अल्लाह आपके लिए गवाह होना काफी है। लेकिन ये लोग, ये जो मलाइका हैं, ये भी आपके ऊपर गवाही दे रहे हैं कि आप बरहक पैगंबर हैं। ये लोग नहीं मान रही, ना माने, आप इसकी फिक्र ना करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बड़ी खूबसूरत तसल्ली दी जा रही है, एक तस्कीन बख्श एक जुमला, इन्नल लजीना कफरू वो सद्दू, अगेन आ गया, सद्दू या सद्दू, सद्दू अन सबीलिल्लाहि
قد ضلوا ضلالا بعیدا، بہت دور کی پوائنٹ آف نو ریٹرن، جہاں سے واپسی کا امکان ہی نہیں ہے۔ جو لوگ اس کو ماننے سے خود انکار کرتے ہیں، سدا یا سدو دیکھیے کیسا یوز ہوتا ہے، اور دوسروں کو بھی اس راستے سے روکتے ہیں، وہ یقیناً گمراہی میں حق سے بہت دور نکل چکے ہیں۔ انا بے شک، الذین اس میں موصولہ جمع مذکر کا صیغہ، الذین وہ لوگ جو کفروا کفر کیا، انہوں نے جو کفر کیا، وہ صدو اور انہوں نے روکا، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے۔ یہ صدو کیسا آتا ہے؟ خود بھی رکنا، دوسروں کو بھی روکنا، انہیں بھی کھینچ کر برائی پر لے کانا۔ بہت سے لوگ کرتے نا، آپ تو کرتی، خود کرنے کے علاوہ دوسروں کو بھی لا لیتے۔ اور اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جو بھی برائی کا کام لوگوں کو تلقین کر کے لوگوں سے کرواتا ہے، اور اس کی اگر آگے چلتی ہے یہ برائی کا کام، فار ایگزامپل کوئی بینکنگ کا شروع کیا، کوئی سودی معاملہ شروع کیا، کوئی سود کے معاملے میں ایک بیپار شروع کیا، اس میں لوگوں کو بھی اکسایا، ان کو بھی لا لیا، اب یہ دوسروں کو بھی لا لیے، تو یہ جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، یہ پائنیئر اس میں جو ہے، جو شروع کیا نا، افتتاح کرنے والا، اس کا شروع کرنے والا، اس کے حصے میں اس کا وبال ضرور پڑتا رہے گا، اور جو بھی اس میں ملوث ہے قیامت تک اس کا یہ اس میں چلتا رہے گا۔ اور جو بھی اچھا کام کرے گا اس کے برعکس، اچھا کام کرا، نیکی کا کام کرا، کوئی مدرسہ کھولا، کوئی مسجد یا کوئی دوسرا کنواں کھودا، یا کوئی بھی رفاہی فلاحی کام بھی، بنے ہوئے انسانی کی فلاح کا کام بھی کیا، تو وہ جب تک قیامت تک اس کا فائدہ ہوتا رہے گا، اس سے افادہ کرتی رہے گی بنی ہوئے انسانی، تو اس کا فائدہ، اس کا اجر و ثواب اس کے کھاتے میں یقیناً لکھا جائے گا، بدستور لکھا جائے گا، آخر تک، ختم ہونے تک، دنیا ختم ہونے تک۔ تو ان کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ ان الذین کفروا وظلموا، نہیں اس سے پہلے کہا، جو لوگ اس کو ماننے سے خود انکار کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی خدا کے راستے سے روکتے ہیں، وہ یقیناً گمراہی کے ایسے درجے میں پہنچ گئے ہیں جہاں سے ان کی واپسی ممکن نہیں ہے۔ دلالم بعید، ایک دم چلے گئے آخری پوائنٹ تک، اب وہاں سے ان کو راستہ ملنے والا نہیں۔ ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا، تو ان لوگوں کے لیے، دوسروں کے واسطے اللہ شفاعت بھی کر سکتا، اللہ بخش بھی دے سکتا ہے، ان کی مغفرت بھی کر سکتا ہے، انہیں راہ ہدایت پر لا بھی سکتا ہے، لیکن ایسے لوگوں کے متعلق اللہ کہہ رہا ہے کہ اس طرح جن لوگوں نے کفر و بغاوت کا طریقہ اختیار کیا، خود بھی کفر کیا، دوسروں کو بھی روکا، اور ظلم و ستم پر اتر آئے، ظلم و ستم پر اتر آئے، ظلم بولے تو شرک کرنا، کفر، ان ظلم شرک کرنا، ان شرک لظلم عظیم، اس کے علاوہ بھی دوسرے بھی جو گناہ ہیں وہ بھی اس میں آ جاتے ہیں۔ تو اس پر جو اتر آئے اللہ ان کو ہرگز معاف نہ کرے گا، اور انہیں کوئی راستہ بھی نہیں دکھائے گا۔ ایک تو بخش دینا، مغفرت کرنا، اور انہیں صحیح راستہ دکھانا، یہ کس کے واسطے ہوتا ہے؟ شرک کرنے والا بھی۔ آج ہمارے مسلمان بہت شرک میں مبتلا ہے، بہت ہی، ہر جگہ ریمپنٹ ہے یہ شرک، نارتھ کیا، ساؤتھ کیا، ایسٹ کیا، ویسٹ کیا، ساری جگہ ہے، ہمارے پڑوسی ملک میں بھی چوٹی پر ہے یہ۔ اگر یہ، حالانکہ یہ ظلم عظیم، اللہ کہہ رہا ہے ان الشرک لظلم عظیم، پھر بھی گناہ کبیرہ ہونے کے باوجود اگر اللہ سے صمیم قلب سے، حضور قلب کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اگر توبہ کر لیں، پھر اس پر جمے رہیں، پھر شرک کی طرف نہ لوٹے، تو اللہ بخش بھی دیتا ہے اور ان کو راہ ہدایت پر بھی لا لیتا ہے۔ وہ کس کے متعلق ہے؟ جو توبہ کر لیتے۔ یہ لوگ ایسے ہیں جو ڈٹے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں، اس پر ضدی ہیں۔ ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم، ان کے لیے کوئی مغفرت نہیں ہے، اللہ مغفرت ان کی نہیں کرتا، بخشتا نہیں، ولیہدیہم، اور نہ ہی انہیں دکھاتا ہے طریقہ، صحیح راستہ، انہیں وہ اس سے بھی محروم ہو جاتی ہے۔ الا طریقہ جہنم خالدین فیہا ابدا، کیا دکھاتا ہے؟ ہدایت کا طریقہ نہیں دکھاتا، مغفرت بھی نہیں کرتا، لیکن دکھاتا ہے کیا؟ سوائے
طریقہ راستہ جہنما جہنم کا خالدین فیہا ابدا اس میں رہیں گے ہمیشہ. انہیں دکھایا جائے گا جہنم کا راستہ جھونکے جائیں گے جہنم میں. وکان ذالک علی اللہ یسیرا کوئی یہ نہ سمجھے خام خیالی میں نہ رہے کہ کیا سب کو لے جا کر جہنم میں ڈال دے گا اللہ. نہیں ڈالے گا. بہت سے لوگ کہتے ہیں کیا جہنم میں ڈال دے گا, کیا اتنا یہ ہے کیا اللہ غفور الرحیم ہے نہیں ڈالے گا. نہیں اللہ ڈالے گا. وکان ذالکا اور ہے ذالکا یہ کام اللہ اللہ پر یسیرا بہت آسان کام ہے یہ. اللہ کہہ رہا ہے غفور الرحیم ہاں ہے بہت جگہ ہے لیکن عزیز ذوالانتقام بھی ہے سریع العقاب بھی ہے سریع الحساب بھی ہے. یہ کیوں چھوڑ یہ چھوڑ دیتی آؤٹ آف کانٹیکس بولتی اللہ غفور الرحیم ہے 70 ماہ کی محبت رکھنے والا ہے. یہ ایک ماں کیا جھونک دے گی کیا تو 70 ماہ کی محبت رکھنے والا نہیں کرتا. ارے تم کام تو کرو ایمان تو لاؤ شرک سے بچو اللہ کے احکامات پر چلو تو ہاں ضرور اللہ غفور الرحیم ہے. ورنہ عزیز ذوالانتقام بھی ہے غلبے والا ہے انتقام لینے والا ہے سریع العقاب بھی ہے بہت جلد دینے والا عذاب دینے والا سریع الحساب بہت جلدی حساب لینے والا یہ بھی ہے. مت چوکو مت بولو آؤٹ آف کنٹیکسٹ نہیں کوٹ کرنا. الا طریقہ جہنم خالدین فیہا ابدا وکان ذالک علی اللہ یسیرا. پھر جہنم کے راستے کے جہنم کا راستہ دکھا دے گا انہیں اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں دکھائے گا وہاں ہمیشہ وہ رہیں گے. یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. اے لوگوں سے مراد سارے لوگوں سے. یا ایھا المتقین یا ایھا المومنین نہیں یا ایھا الناس ساری دنیا کے مسلمانوں ساری دنیا کے لوگوں. قد جاءکم آ گیا تمہارے پاس رسول آ گیا ہے بالحق برحق حق لے کر آ گیا ہے کتاب لے کر آیا ہے من ربکم اپنے رب کی طرف سے تمہارے رب کی طرف سے. کم آیا ہے تمہارے رب کی طرف سے تمہارے رب کی طرف سے کتاب نازل کی گئی ہے تمہارے لیے تمہاری بھلائی کے لیے. فآمنو تو ایمان لاؤ خیر لکم اگر خیریت چاہتے ہو جیسا ہم کہتے ہیں نا یہ خیریت اگر ہونا ہے تو کیا کرنا یہ کرو کیا کرو فآمنو خیر لکم تم خیر چاہتے ہو خیریت چاہتے ہو تو اللہ پر ایمان لے آؤ. وَإِن تَكْفُرُوا اور فآمنو ایمان لے آؤ خیر لکم تمہارے لیے یہ بہت بہتری ہے. اور اگر تم نہ مانو گے فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ تو تمہاری ضرورت نہیں ہے اللہ کو. اس سے پہلے ایک بہت ہی مستحکم بہت ہی سنگین ورڈز آ گئے. کیا آئے تھے؟ تمہیں لے جائے گا لِذَهَبَ تمہیں لے جائے گا یعنی تمہیں مٹا دے گا دوسری قوم کو لائے گا جو تمہاری طرح نہ ہوگی فسق و فاجر ناہنجار ناقل بات نہیں ماننے والی نافرمان قوم نہیں ہوگی. وہ اللہ کے احکامات پر چلنے والی قوم کو لائے گا تمہیں لے جائے گا تمہیں مٹا دے گا. تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے لوگوں یہ رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آ گیا ہے تو اب حجت تمام ہو گئی. اب نہیں بول سکتے کہ اللہ تو نے کتاب نہیں بھیجی کوئی رسول نہیں بھیجتا تو ہم بہت زیادہ ایمان پر ہو جاتے تھے تیرے مطیع فرما بردار ہو جاتے تھے. نہیں اب آ گیا ہے اب حجت تمام ہو گئی ہے تو ایمان لے آؤ تمہارے ہی لیے بہتر ہے یہ. خیر لکم خیر بہت بہتری بہت بھلائی بہت بہتر ہے تمہارے لیے. اور اگر انکار کرتے ہو تو جان لو کہ اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے سب اس کی تعریف کر رہی ملائکہ ہے چر چر کرتی ہے وہاں کی چھت. کہا جاتا ہے کہ قاتل دھرنے کی جگہ نہیں ہے وہاں پر اتنے ملائکہ ہیں. کوئی اللہ کی ثنا بیان کر رہا ہے کوئی سجدے میں ہے کوئی رکوع میں ہے ہم تعریف ہی تعریف چل رہی ہے عبادت ہی عبادت چل رہی ہے. تمہاری کیا ضرورت ہے اللہ کو؟ تمہاری خیر کے واسطے تمہاری بھلائی کے واسطے تم اپناؤ اللہ کا راستہ تم ایمان لے آؤ تم ایمان لے آؤ تو تمہاری خیر ہے تمہاری بھلائی ہے. ورنہ آسمان زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ کی عبادت کر رہا ہے ذرہ ذرہ عبادت کر رہا ہے. چڑی چون چون کرتی ہے کوئل کو کو کرتی ہے پپیہا اوپر کرتا ہے اس کی آواز تو کیا ہے یہ سب اللہ کی ثنا بیان کر رہی ہے. ایسے ہی نہیں بول رہے اللہ کی ثنا بیان ہو رہے ہم نہیں جانتے ان کی بولی کو. اللہ کی عبادت کریں ہر ذرہ عبادت کر رہا ہے تمہاری کیا ضرورت ہے میں اگر کرتے ہو تو تمہارے لیے فائدہ ہے ورنہ تم ہی جاؤ گے جہنم میں.
صدق اللہ. سبحان اللہ و بحمدی سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ.